السلام عليك يا أبا عبد الله. رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبيين المخاطب طه والياسين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب عنتر والد شبیر و شبر خالہ کی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین اللهم صل علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جس نے ایک بار پھر سے ہم سب کے لیے اس دروازے کو کھولا اور ہم سب کے مقدر میں ایک مرتبہ پھر سے یہ فرش عزائر حسین لکھا گیا. شکر ہے اس خداوند کریم کا. خدا کے حضور شکر کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد اذان وہ پروردگار عالم جو لہجہ بھر بھی ہم سے غافل نہیں ہے. پروردگار جس سے ہمارے ہر احساس اور ہر مشکل کا احساس وہ پروردگار عالم کبھی ہمیں کسی طور تنہا نہیں چھوڑتا. وہ خود اپنے بارے میں سورہ نمل میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا وہ کون ہے جو جب بے قرار اس کو پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے. یہ وہ آیہ کریمہ ہے جو مستقل وظیفے کے طور پر ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے بھی ہیں. اسی حوالے سے موضوع سخن دعا قرار پایا اور اذان عزا دعا کے معنی پکارنے کے لیے کسی کو پکارنا. اور جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ساتھ میں اپنی طلب بھی اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور دعا میں ہم زیادہ سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار سب صحیح رہے, صحت سلامتی, مال اولاد, گھر, مادی چیزیں, آخرت. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگ سکتے اپنے حوالے سے. امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا یا اور مختلف حوالوں سے دعا یہ ہماری طلب کا دائرہ کار ہے. در حقیقت ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے. اذان عزا جو ہم مانگتے ہیں کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ قطعاً نہیں. اگر ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگیں. لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ اور جو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے وہ ہے استغفار. اس سے یہ بتانا کہ ہم پشیمان ہیں ان گناہوں پر, ان کاموں پر تیری ناراضگی کا سبب بن. اور اب ہم تیرے حضور حاضر ہیں اور تیرے سامنے موجود ہیں. کیا تو ہمارے پریشان حالی پہ رحم کرے گا؟ کیا تو ہماری مفلسی پہ رحم کرے گا؟ کیا تو ہماری ضبط حالی پہ رحم کرے گا؟ اذان عزا یہ استغفار بہت ہی معمولی سا وظیفہ ہے اور اگر بار بار استغفر اللہ کہا جائے تو ایک سانس بھی پوری نہیں ہوتی اور استغفر اللہ کا کلمہ مکمل ہو جائے. مولا علی کے پاس مولا علی امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ محمد جو کرتی چلی گئی عمرے رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. دیکھا جو موت آ رہی ہے لب پر علی کا نام اس سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. نعرہ حیدری امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد محمد. امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہ آپ کی ظاہری خلافت
खिलाफत का दौर था। ज़ाहिरी खिलाफत क्यों कह रही हूँ क्योंकि अमीरुल मोमिनीन फकत 4 सालों के लिए अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, वो जब पैदा हुए जब इस दुनिया में तब से अमीरुल मोमिनीन और आज तक अमीरुल मोमिनीन। तो अमीरुल मोमिनीन मस्जिद गुफा में तशरीफ़ फरमा थे तो एक ग्रोह आया लोगों का और मौला से कहा या अली हमारे, क्योंकि गुफा एक बहुत बड़ी रियासत थी और इस्लामी रियासत भी बहुत बड़ी थी, दूर दराज गाँव से आए और कहा या अली हमारे इलाके में कहत साली हो गई, बारिशें नहीं, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि हमारे यहाँ बारिशें हो। मौला ने इरशाद फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा ग्रोह आया और कहा या अली इक़्तिसादी तंगी का शिकार हैं, बाजार बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई वजीफ़ा कोई दुआ बता दीजिए कि हमारा इक़्तिसादी हालात सही हो जाएं। इसका कसरत से इस्तिग़फ़ार क्या। फिर कुछ लोग आए और कहा कि या अली परेशान हाल है, आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। फिर एक शख्स आया कहा या अली बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है, शादी को औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दें। फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार। इब्न अब्बास बराबर में बैठे थे, कहा या अली क्या आप सबको एक ही वजीफ़ा बता दें। और अली ने इरशाद फरमाया इब्न अब्बास क्या तुम सूरह नूह की वो आयत भूल गए जिसमें खुदावंद करीम इरशाद फरमा रहा है, सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12 तक, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, और इस्तिग़फ़ार से अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान के रास्ते खोल देगा ताकि बारिशें बरसें। अल्लाह तुम्हें माल और औलाद से कवी करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरों को जारी कर देगा। सुभान अल्लाह। तो जो शख्स पहले हमारे पास आया जो ग्रोह और कहने लगा कहत साली है, तो मैंने उसे कसरत इस्तिग़फ़ार का कहा। जब इक़्तिसादी तंगी का शिकार लोग आए तो भी मैंने उन्हें इस्तिग़फ़ार का बताया। जब माली परेशानी लेकर आए तो भी मैंने इस्तिग़फ़ार का बताया। जब औलाद की तंगी का लेकर आए तो भी मैंने इस्तिग़फ़ार बताया। इब्न अब्बास कहते हैं या अली ऐसा लग रहा है कि आयत आज पहली बार सुनी है और पहली बार नज़रों से गुजरी है। ऐसा लग रहा है इससे पहले ये आयत मैंने पढ़ी नहीं ना नज़र से गुजरी। तो जाने मन उमूमी तौर पे इंसान को ये लगता है अगर हम कोई बहुत मुश्किल काम करेंगे तो अल्लाह बहुत जल्दी हमारी दुआएं सुन लेगा। 40 रोज़ तक 100 रकत नमाजें पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी जल्दी। उमूमी तौर पे होता क्या है कि आप अगर किसी के पास वजीफ़ा पूछने जाएं और वो कह दे कि इस्तिग़फ़ार करो, तो इंसान को लगता है कि उसकी परेशानी को सही से समझा ही नहीं गया, और जितनी बड़ी परेशानी थी वैसा वजीफ़ा तो बताया ही नहीं गया। अब भला इस्तिग़फ़ार भी कोई वजीफ़ा हो सकता है? हालांकि वो इस्तिग़फ़ार है कि वो कलमा ही अज़ान अज़ा कि अमीरुल मोमिनीन खुद कितने मसाइल के लिए इस वजीफ़े को तजवीज़ करते। और जब हम खुदावंद करीम से दुआ अपनी कोई भी हाजत मांगने से कब्ल इस्तिग़फ़ार करेंगे तो यकीनन उस रब के जो रहमत का दरिया है वो मौज में आएगा, और वो परवरदिगार हम पर जो मुसलसल रहम फरमा रहा है बहुत कभी इम्कानात है कि उस रहम में मज़ीद इजाफा हो और परवरदिगार हमारी तरफ मज़ीद नज़र करम करे। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है जाने आजा। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इस कदर मुतनफ़्फ़िर हो चुके थे तो अरसे तक उन्होंने तबलीग की। उसके बाद जब कौम यूनुस ने इनकार कर दिया हर तरह से ईमान लाने से, तो अल्लाह ने वही की जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को कि अब इनको वईद कर दो अज़ाब की और तुम इस कौम से चले जाओ। जनाब यूनुस ने वही किया, वही दी और कौम से दूर चले गए। जब जनाब यूनुस मुकर्ररा मुद्दत के बाद वापस आए तो देखा कौम यूनुस उसी तरह मौजूद थे। तो परवरदिगार के हुज़ूर कहा कि परवरदिगार मैं तो दुआ करके गया था कि और इनको कह दिया था कि अज़ाब आएगा इन पे, और अब अगर अज़ाब नहीं आया तो मेरी बात खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे कि मैं झूठा हूँ और मेरी बात सच्ची नहीं है, बहुत शर्मिंदा हुई। तो जनाब यूनुस का वो पूरा वाक़या हुआ कि वो मछली के पेट में रहे और काफ़ी अरसे तक वो मछली के पेट में सफ़र करते रहे। उसके बाद एक दरख्त के नीचे आए और वहाँ पर उन्हें शफा हासिल हुई। वो उसी दरख्त से फल खाते थे, उसी दरख्त के नीचे शफाएँ हासिल। बहुत अरसा गुजर गया था।
शफायाब हो गए, वापस अपने कौम में आए, तबलीग की, लोग ईमान भी ले आए। वापस पलट कर गए तो देखा वो दरख्त जिसके नीचे शफा हासिल की थी वो दरख्त जल गया। अफसरदा हुए का ये वो दरख्त था जिसने इतने नाजुक हालात में मेरा साथ दिया, इसके नीचे मैंने शफा पाई, इसका फल खाया और आज ये मुरझा गया है। निदाए गैबी आई कि ए यूनुस, तुम्हें इस दरख्त का अफसोस हो रहा है जो ना तुमने लगाया, ना उगाया, ना इसमें से फल तुम्हारी मर्जी से आए, ना इसका सायादार तुमने बनाया, उसके बावजूद तुम्हें अफसोस हो रहा है इसके मुरझा जाने। वो मेरी कौम है यूनुस, उसे मैंने बनाया, मैंने बड़ा किया, मेरा रिस्क खा रहे हैं। उन्होंने जब मुझसे इस्तग़फ़ार की तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। आज़ाब जो उनके मुक़द्दर में लिखा जा चुका था मैंने उनके सर से टाल दिया। एक बार सलावत पढ़ लीजिए। इसीलिए बनी हाशिम का है कमर गाजी, नाला हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ग़ज़ाने मन जब भी कोई दुआ मांगिए कोशिश कीजिए इस्तग़फ़ार को अपने वज़ाइफ में, अपनी दुआओं में शामिल करें कि वो कलिमा है जो बहुत बाअसर है और इसलिए ज़्यादा दिक्कत तलब भी नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी लम्हे खुदा को पुकार भी सकते हैं, इस्तग़फ़ार भी तलब कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जब इस्तग़फ़ार तलब करेंगे तो जिस चीज़ के लिए इस्तग़फ़ार तलब कर रहे हैं उसकी तरफ वापस पलट कर नहीं जाएंगे। अगर कभी चले जाएं कोशिश कीजिए कि अपने नफ्स पर, बहुत मुश्किल है, कलमा बहुत आसान है अदा करना, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि अब पलट कर उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे, लेकिन हम अगर बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं और फिर इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो उसका कोई माना नहीं रह जाते। अज़ान आज़ाद दुआ चूँकि मौज़ूए गुफ्तगू है और आज पहली मुहर्रम है और फर्श रज़ा हुसैन पर भी बैठे हैं, यकीनन इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता कि हम दुआएं तलब करें, खुसूसन अपने इमाम के ज़हूर में ताजील भी ना करें। वो वारिस जो खून हुसैन का बदला लेने के लिए मौजूद हैं और बेताब खुदावंद करीब उनके लिए हमेशा आसानी करे, उनके जोर बाजू में इजाफा फरमाए, उनके ज़हूर में ताजील और ये दुआ कैसे काम करती है जाने आज़ाद। बाज़ औक़ात हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे अमाल की वजह से दुआ कबूल नहीं, हमारे इतने गुनाह हैं कि अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा नहीं, और फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी और के पास जाते हैं और उससे क्या कहते हैं कि तुम तो अल्लाह से ज़्यादा नज़दीक हो, तुम हमारे लिए दुआ कर दो तो अल्लाह सुनेगा। ये शिर्क का पहला ज़ीना है जो हम चलते हैं, जब लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारी दुआ खुदा सुन लेगा और हमारी नहीं सुनेगा। ये वो वसवसा है जिसे शैतान इस्तेमाल करता है, और जब हमें उस पर ज़्यादा यकीन हो गया कि उसकी दुआएं ज़्यादा मुस्तजाब हो रही हैं और हमारी नहीं, हमने खुदा के अदल पर शक किया, खुदा के आदिल होने पर शक किया। इसका मतलब है कि हमारा ईमान मुतसलसल हो गया। जब ईमान मुतसलसल हो गया तो ऐसी ज़मीन हमने मुहैया कर दी शैतान को कि अब वो उस पर वसवसे, बुराई और गुनाहों के बीज बोएगा और फिर हम कभी इससे नहीं निकल पाएंगे। और ये वो मामूली बातें जो आम तौर पे ज़िंदगी में हम कर रहे होते हैं, वो जुमला कि अगर तुम नहीं होते तो मैं तो बच ही नहीं सकता था, ये वो जुमला है जो शिर्क के ज़ुमरे में आ रहा है। कोई किसी में इतनी इस्तिताअत नहीं है कि किसी को बचा सके, किसी को रोक सके, किसी को ज़िंदगी दे सके, किसी को मौत दे सके, किसी में इस्तिताअत नहीं है। हाँ, मगर उस रब में तो जो आम जुमले हम अदा कर रहे हैं, अगर हम उन पर गौर करें तो ये भी परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है अजीज़ों कि हमारे इन जुमलों पे हमारी पकड़ नहीं करता। हम लोग जो आमतौर पर अदा कर रहे हैं, जो काम किए चले जा रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, बारहा कर रहे हैं, उन पर खुदावंद करीम हमारी कभी पकड़ नहीं करता, बल्कि हमें मौका फराहम करता है। तो क्यों ना हम इस दुआ को अपना हथियार बनाएं और एक ढाल के तौर पर इस दुआ को इस्तेमाल
تمام وسوسوں سے دور رہیں انشاءاللہ. اگر زندگی رہی تو کل اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ دعا کس طرح سے کام کرتی ہے اور کیسے قبولیت کا شرف پاتی ہے. خزانہ پہلی محرم ہے اور آج مخصوص ہے روانگی مدینہ سے. مولا جب روانہ ہو رہی تھی مدینے سے سورہ قصص کی ایک آیت تلاوت کی. آپ نے تلاوت کیا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب موسیٰ خائف ہو کر ڈرتے ہوئے اپنا وطن چھوڑا اور خدا سے دعا کی کہ خدا مجھے ظالمین سے بچا. وہ شب حسین پر اتنی شاق تھی مدینے کو چھوڑنا، اپنے نانا کی، اپنے بھائی کی، اپنی ماں کی لہد سے دور چلے جانا، اپنی بیٹی کو تنے تنہا بے آب و گیا صحرا میں یہ یارو مددگار چھوڑنا بہت مشکل تھا. اتنا مشکل کہ روایات بتاتی ہیں، مختلف مقاصد میں یہ روایت کرتی ہے کہ امام جب ولید کے دربار سے واپس آئے اور ترتیب دے لیا، تمام تر سفر کا ارادہ کر لیا، اپنے نانا کے روضے پر گئے اور نانا کی قبر سے لپٹ کر یہ اوزاری کیا اس طرح کہ آواز بلند ہونے امام کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں اپنے نانا کو دیکھا. شبیر نے سر نانا کے سینے سے لگایا، پھر بولے کہ جب سے ہے اٹھا آپ کا سایہ، نانا کی قسم چین نہیں ہم نے ہے پایا. اب لے چلو ساتھ اپنے کی امت نے ستایا، جانے نہ دو سفر میں رہنے دو وطن میں، ہم تم رہے ایک قبر میں اور ایک کفن میں. رسول اللہ نے وعدہ وفا کرنے کی تلقین کی اور وہ وعدہ یاد دلایا، عرض بتائی